السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج بتاریخ 31 اگست سن 2020 عیسوی ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں کا بیان جو شروع کیا ہے اور سلسلے وار وہ درس چل رہا الحمدللہ۔ تو آج اس کی 13ویں قسط ہے اور انشاءاللہ کچھ قیامت کی نشانیوں کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے جس نشانی کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ چھوٹی نشانیوں میں سے 2-3 نشانیاں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو بڑی نشانیوں کا ذکر ہوگا۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب میں حدیثوں کو، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے حدیثوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے کچھ فتنوں کا ذکر ہے، پھر چھوٹی نشانیاں، پھر بڑی نشانیاں۔ تو انہی نشانیوں میں سے میرے دوستو جو ہے کیا ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اور دریائے فرات میں سونے کا جو پہاڑ ظاہر ہوگا اسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا یہ۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ جب سنیں گے تو اس طرف چل پڑیں گے، یعنی اسے حاصل کرنے کے لیے۔ جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہیں روکا تو سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے۔ چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ 99% لوگ جو ہے یہ وہاں میرے دوستو مار دیے جائیں گے جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو دریائے فرات جو ہے یہ مشہور دریا ہے، جو سمجھیے کہ اس کی بہت زیادہ اس کی لمبائی ہے، اور یہ ترکیہ اور سوریہ اور عراق 3 ملکوں میں اس کا رقبہ ہے، لمبائی، یعنی 3 ملکوں میں تک جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس میں اسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہو، یعنی دریائے فرات سے، پر جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی چھوڑ دے اس کو۔ اسی طرح سے میرے دوستو قیامت کے قریب جو ہے اہل ایمان اجنبی کی طرح ہو جائیں گے، ہے نا، اپنے ہی افراد، اپنے معاشرے، ماحول میں وہ اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ اجنبی یعنی اپریچت آدمی، جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، اس طرح سے ان کی حالت ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں بھی اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا۔ لہذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ تو اسلام جیسے شروع میں آپ جانتے ہیں کہ ایک اجنبی کی طرح تھا، لوگ اس کے ماننے والے کم تھے، ایمان لانے والے لوگ کم تھے، ہے نا، تو اسی طرح سے جو ہے قیامت سے پہلے بھی اس کی حالت ہو جائے گی۔ جیسے پہلے
اس پر ایمان لانے والے کم تھے، ہے نا، تو اجنبی کی طرح جو ہے یہ آدمی یہ اسلام بھی جو ہے قیامت سے پہلے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں، سماج میں اجنبی بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کے ساتھ جو ہے میل جول رکھنا، تعلقات قائم کرنا یہ پسند نہیں کرتے، ہے نا۔ جس طرح برے لوگ نیک لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتے، اسی طرح نیک لوگ جو ہے بھی برے لوگوں سے میل جول پسند نہیں کریں گے، ہاں۔ اس لیے نیک لوگ اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے آخری نشانی کا جو بیان ہے وہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس پہ ایمان لانے والے کم تھے، لوگ اس کے دشمن تھے، ہے نا، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں، مسجد حرام اور مسجد نبوی دونوں مسجدوں میں آ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ایمان حرمین شریفین میں پلٹ آئے گا جو ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے دوسری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے، سمجھ رہے۔ تو یہ آخری بات تھی میرے دوستو قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے۔ اب اس کا جو آخری حصہ جو شروع ہو رہا ہے، تیسرا حصہ جو جس میں بڑی نشانیوں کا ذکر ہوگا، تو میں اس کو بھی کچھ بعض نشانیاں میں اس کو میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ ہے الملاحم کا، یعنی جنگیں، لڑائیاں، یعنی یہ لڑائیاں اور جنگیں بہت شدید ہوں گی، اور انہی میں سے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب، پورا جزیرہ عرب، ایران، روم اور دجال کے مغلوب ہونے کی پیش گوئی فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ سب مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان غالب ہو جائیں گے، ہے نا۔ نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے، لڑائی کرو گے، اور اللہ اسے فتح کر دے گا۔ پھر ایران سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا۔ پھر اس کے بعد روم والوں سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی جو ہے تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ حدیث میں ہے تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ ثم فارس فیفتح اللہ ثم تغزون الروم فیفتح اللہ ثم تغزون الدجال فیفتح اللہ۔ تو یہاں جو حدیث میں فارس کا ذکر ہے نا، تو فارس یعنی یا فارس یا فارس جو بولتے ہیں، یہ یعنی ایران، جو جہاں پہ فارسی زبان بولی جاتی ہے وہی مراد ہے یہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روم کو فتح کر دے گا، اس سے پہلے ایران سے جہاد کرو گے، روم والوں سے جہاد کرو گے، اللہ تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا۔ پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، اللہ بھی اسے فتح کر دے گا، جو ہے اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ ایک دوسری روایت ہمیں دوستوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد مات کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کسریٰ مر چکا ہے، یعنی ایران کا بادشاہ ہے کسریٰ، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں مشہور تھیں، بڑی حکومتیں تھیں، کسریٰ مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ اور جب قیصر یعنی روم کا بادشاہ ہے، جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، وہ فتح کریں گے اس کو، جو خزانہ اسے حاصل ان کو حاصل ہوگا، ان خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح میرے دوستو، انہی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے، قیامت کے قریب جو ہے غالباً جو ہے بیت المقدس دارالخلافہ بن جائے گا، اور اس کے بعد ترکی فتح ہوگا، جس کے بعد فوراً دجال نکلے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना मनव्वरा की ख़राबी का बाइस बनेगी, और मदीना मनव्वरा की ख़राबी से जंगों की इब्तिदा होगी, और जंगों के ज़हूर के बाद कुस्तुनतुनिया जो है ना, कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल का पहले पुराना नाम कुस्तुनतुनिया जो तुर्की में है और गालिबन वो राजधानी है, इस्तांबुल फ़तह होगा, और कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। ये इरशाद फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक यानी अपना हाथ जो है मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की रान या कंधे पर मारा और फरमाया, ये बात इसी तरह यकीनी है जिस तरह तेरा वजूद यहाँ यकीनी है, यानी जिस तरह तू यहाँ मौजूद है तेरा वजूद यकीनी है, इसी तरह ये बात यकीनी और ये चीज़ होगी या जैसे तेरा यहाँ बैठना यकीनी है। समझ रहे हैं ना। ये अबू दाऊद की रवायत है, हसन हदीस है। तो बैतुल मुक़द्दस का दारुल खिलाफा बनना जो है मेरे दोस्तों, ये मदीना मनव्वरा की बेआबादी का सबब बनेगा जो है, ठीक है। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। इसी तरह से मेरे दोस्तों किसी मार्के में है ना, जो एक लड़ाई जंग होगी जिसमें मुसलमान और ईसाई मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग करेंगे, यानी जो ईसाइयों का भी दुश्मन होगा और यानी क्रिश्चियनों का और क्या है मुसलमानों का, तो ये दोनों जो है मिल करके मुसलमान और क्रिश्चियन जो है ये अपने मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग करेंगे और फ़तह हासिल करेंगे। फ़तह के बाद ईसाई अपने सलीबी अक़ीदे के तासुब की वजह से अपने अहद को तोड़ देंगे, जो है जो अहद होगा कि हम आपस में इत्तेफाक से रहेंगे, किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा, इसको तोड़ देंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सख्त जंग होगी जिसमें सारे मुसलमान शहीद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस सिलसिले में एक रिवायत सुना देना चाहता हूँ आपको। अबू दाऊद की रिवायत है, सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत ज़ी मिख़बर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तुम रूम से सुलह करोगे, यानी रूम के ईसाइयों से, क्रिश्चियनों से, और दोनों मिलकर एक दुश्मन से लड़ोगे जो तुम्हारे पीछे होगा। तुम लोग फतह हासिल करोगे, गनीमत हासिल करोगे और सलामती के साथ वापस आओगे, और एक टीलों वाले मैदान में है ना पड़ाव डालोगे। वहाँ एक ईसाई सलीब बुलंद करके कहेगा, सलीब जो सूली का निशान जो क्रास और लटका रहता है ना, गले में पहने रहते हैं, वो ऐसे रेड क्रास से बना होता है लंबा, उसके बाद फिर बीच में से एक लाइन लकीर होती है, और आप देखते हैं आमतौर से ईसाई अपने गले में पहनते हैं, उनका निशान भी वही है। और वो अलामत तो क्या कि जो जिस पे बताते हैं कि जो सूली का निशान सलीब यानी सूली देना, ईसा अलैहिस्सलाम को जो सूली हो गई थी उनके अक़ीदे के मुताबिक, ठीक है ना। तो वो सलीब को बुलंद करके जो है उस निशानी को क्या है बुलंद करके कहेगा कि सलीब को फतह हुई, यानी सलीब को जीत हुई। मुसलमानों में से एक आदमी उस पर गुस्सा होकर के ईसाई को मार देगा, समझ रहे हैं ना, ईसाई को मार देगा या सलीब को तोड़ देगा, दोनों मफ़हूम बताया गया है, समझ रहे हैं ना। हदीस में है फ़यक़्ज़िबु रजुलुन मिनल मुस्लिमीन फ़यदुक़्क़ुहु, समझ रहे हैं, यानी उसको मार देगा, गुस्सा होगा आदमी मुसलमानों में से, और या उसको सलीब को तोड़ देगा। बहरहाल इसकी बिना पर जो है अहले रूम जो है, रूम वाले ये अपने वादे को तोड़ देंगे, अहद शिकनी करेंगे, और दूसरे ईसाइयों को यानी जो उनसे अहद व पैमान था वो तोड़ देंगे, और दूसरे ईसाइयों को जंग के लिए इकट्ठा करेंगे और दूसरे लोगों को बुलाएंगे मुसलमानों से लड़ने के लिए। दूसरी तरफ क्या है, मुसलमान तन्हा ही रह जाएंगे और वो शहीद हो जाएंगे, समझ रहे ना। इसका मतलब ये होगा कि वो सारे लोग मार दिए जाएंगे। हस्सान बिन अतिया की एक रिवायत है, ऐसी ही एक हदीस है जिसमें इतने अल्फाज ज़्यादा हैं कि यानी जब ईसाइयों की यहाँ शिकनी के बाद जब वो जंग करने के लिए अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ज़्यादा अल्फाज हैं इसके आगे। मुसलमान जल्दी जल्दी अपने हथियारों की तरफ जाएंगे और जंग करेंगे, यानी ईसाई इत्तेहादियों से, जो ईसाइयों के साथ लड़ने वाली जो उनकी एक जमात और आएगी, उनसे वो जंग करेंगे। अल्लाह ताला उस जमात को शहादत के सर्फ से नवाजेगा जो है, यानी वो सारे के सारे लोग जो है मुसलमान शहीद हो जाएंगे। और ईसाइयों के मेरे दोस्तों इस इत्तेहाद में है ना, ये भी निशानियों में जिक्र किया गया कि इत्तेहादी जो है, जो ईसाई इत्तेहादी होंगे क्रिश्चियनों के, इस मार्के में लड़ाई में मुसलमानों के ख़िलाफ़ 9,60,000 का लश्कर जमा करेंगे वो।
9,60,000 ईसाई जो मुसलमानों को लड़ने के लिए वो इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। औफ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले रूम और तुम्हारे दरमियान सुलह होगी, फिर रूम वाले जो है तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे और तुम्हारे मुकाबले में 80 झंडों यानी 80 ममालिक के साथ फ़ौज लेकर आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फ़ौज होगी, तो यानी तकरीबन 9,60,000 बनता है जो है। तो इतना बड़ा लश्कर जो है वो मुसलमानों से लड़ाई करेगा उन अहले रूम वालों की गद्दारी और उनकी अपने अहद को तोड़ने की वजह से, समझ रहे हैं ना। इसी तरह मेरे दोस्तों, शाम का एक इलाका है, मुल्क शाम जो सीरिया है, ये भी एक निशानी बताई गई है बड़ी निशानियों में से। ये सब जंगों का बयान हो रहा है जो आमतौर से लड़ाई होगी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान। शाम का जो इलाका एक है आमाक या दाबिक जो है, उसमें रूम के जो ईसाई होंगे, क्रिश्चियन और मुसलमानों के दरमियान जंग होगी, जिसमें मुसलमानों को फतह होगी। उस जंग के बाद इस्तांबुल यानी तुर्की फतह होगा और उसके फ़ौरन बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। एक रिवायत मुस्लिम शरीफ की लंबी रिवायत है, मैं उसका तर्जुमा बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ये होगा कि लश्कर आमाक या दाबिक में पड़ाव करेगा, फिर मदीना मनव्वरा से एक लश्कर जो है ना, मदीना मनव्वरा से एक लश्कर रोमियों के मुकाबले के लिए जो है निकलेगा। वो लश्कर ज़मीन वालों में से बेहतरीन लश्कर होगा, यानी जंगी सलाहियत जो होती है, लड़ाई का तरीक़ा, या इसी तरह से जो है तक़वा के एतबार से, है ना, ये सारी चीज़ों हर एतबार से वो बेहतर होंगे, समझ रहे हैं ना। जंगी सलाहियत भी लड़ने के अंदर होगी, हुनर होगा, तक़वा भी उनके अंदर होगा। तो ये मदीना मनव्वरा से लश्कर निकलेगी। बहरहाल जब दोनों लश्कर यानी मुसलमान और ईसाई की सफ़ें बांध लेंगे तो ईसाई जो है मदीना से आए हुए मुसलमानों से वो कहेंगे कि तुम मुसलमानों से यानी शाम के मुसलमानों से तुम अलग हो जाओ, उन्होंने हमारे मर्दों औरतों को ग़ुलाम बनाया है, हम सिर्फ उन्हीं से लड़ाई जंग करेंगे। तो मदीनी मुसलमान जो मदीना से आए हुए लश्कर होगा वो कहेंगे, वल्लाह हम अपने भाइयों को तुम्हारे मुकाबले के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर दोनों लश्करों यानी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान लड़ाई होगी। मुसलमानों का 1/3 लश्कर भाग जाएगा, समझ रहे हैं ना, भाग जाएंगे छोड़ करके मैदानों। अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा, समझ। जैसे मदीना के मुनाफिकों ने धोखा दिया था, जब जंग उहुद के मौके पर वो जाने तकरीबन 300 तादाद में साथ में जा रहे थे, फिर वापस आ गए, है ना, मुनाफिक थे, दिखाना था उनको या मुसलमान है। बहरहाल तो 1/3 लश्कर जो भाग जाएगा मुसलमानों का, और हदीस में है कि उनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं फरमाएगा। 1/3 लश्कर मारा जाएगा, है ना, और ये अल्लाह के यहाँ ये बेहतरीन शुहदा का दर्जा पाएंगे, और 1/3 जो है फतह पाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी गोया कि 3 हिस्से में 1 हिस्सा जो है यही लोग फतह पाएंगे, 1 हिस्सा तो भाग जाएगा, 1 हिस्सा शहीद हो जाएगा, और ये 1/3 हिस्सा जो फतह पाएगा। और ये 1/3 जो लड़ने वाले जो होंगे, जो मुजाहिद होंगे, कभी फितने में नहीं पड़ेंगे। इसके बाद मुसलमानों का लश्कर इस्तांबुल को फतह करेगा, यानी तुर्किया को। ये लोग फतह के बाद अपनी तलवारों को जैतून के दरख्तों से क्या है बांध कर माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि शैतान पुकारेगा तुम्हारे पीछे अहलो अयाल में, तुम्हारे जो बाल बच्चे हैं वहाँ दज्जाल आ गया है। जब ये बात सुनेंगे मुसलमान तो इस्तांबुल से वो निकल कर भागेंगे, है ना, और बाद में उनको रास्ते में मालूम होगा कि ये खबर झूठी है, लेकिन जब शाम पहुँचेंगे तो दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। मुस्लिम की रिवायत है मेरे दोस्तों। तो हदीस में जो ये जिक्र हुआ आमाक और दाबिक 2 जगह का, ये 2 अलग अलग मकाम हैं जो शाम के मशहूर शहर, शाम जो सीरिया जिसको आप आजकल बोलते हैं, हलब, वहाँ पे एक मशहूर शहर हलब जो है वो उसके करीब में वाक़ हैं दोनों जगह। दोनों जगहों में से कोई एक मैदान जंग बनेगा जहाँ पे मुसलमान और ईसाइयों की लड़ाई होगी जो है। दूसरी बात जो इसमें बताया गया कि इस्तांबुल पर फतह होगा मुसलमानों का, तो तुर्की आज आप देख रहे हैं तो मुसलमानों के कब्ज़े में है, बड़ी हुकूमत है,
ये आइंदा कभी किसी वक्त ईसाइयों के कब्ज़े में ये मुल्क चला जाएगा और मुसलमान क़यामत से पहले उसे दोबारा फतह करेंगे। ये होगी ये चीज़ मेरे दोस्तों, ये बड़ी निशानियों में से। तो तुर्किया जो है ना, ये किसी दिन ये ईसाइयों के कब्ज़े में जाएगा, मुसलमान दोबारा उसको फतह करेंगे। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुंतनिया है। तुर्की ज़ुबान में इस्तांबुल को इस्लाम्बुल कहा जाता है। मतलब ये फ़ायदे की चीज़ जो मैंने बताया आपको। इसी तरह मेरे दोस्तों एक निशानी ये भी बताई गई कि इस्तांबुल शहर जो तुर्किया है, यानी जो तुर्की है, तुर्की में या तुर्की मुल्क को आप ले लें पूरा, हथियारों के बगैर कलमे तकबीर पढ़ने से फतह होगा। सुन रहे हैं ना, हथियारों के बगैर कलमे तकबीर पढ़ने से फतह होगा। और एक हदीस इस सिलसिले में बताना चाहता हूँ आपको, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मैं सुना देना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें वो शहर मालूम है जिसके एक जानिब खुश्की दूसरी जानिब समुंदर है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हाँ रसूलल्लाह मालूम है ना, मालूम है। उन्होंने बताया कि हम लोग जानते हैं। यानी मुराद उन्होंने क्या लिया था, वही तुर्की का शहर इस्तांबुल जिसका पुराना नाम कुस्तुंतनिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बनी इसहाक में से 70,000 आदमी इसके ख़िलाफ़ जो है जिहाद ना कर लें। जब वो आएंगे तो पड़ाव डाल देंगे, लेकिन उनके साथ जो है हाथ हथियार, यानी समझ रहे हैं ना, हथियार या ऐसा तीर नेजा भाला, इससे लड़ाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। फ़लम युक़ातिलू बिसिलाहिन वलम यरमू बिसहमिन, हदीस के अल्फाज हैं। हथियार और तीर वगैरह से, नेज़ा वगैरह, इससे लड़ाई नहीं करेंगे वो। समझ रहे हैं ना, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो शहर की एक दीवार गिर पड़ेगी। फिर दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो दूसरी सिंध की दीवार भी गिर पड़ेगी। तीसरी बार ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो मुसलमानों के लिए सारा रास्ता खुल जाएगा और उस शहर में दाखिल हो जाएंगे और माल गनीमत हासिल करेंगे। जब माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो अचानक एक पुकार सुनाई देगी, दज्जाल निकल आया। मुसलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ चल पड़ेंगे। तो बताना यह था मेरे दोस्तों कि वो शहर जो कुस्तुंतनिया, तुर्की का शहर जो ये, या तुर्की जो फतह होगा, ये अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर के नारे से नारा लगेगा और जो है कलमा पढ़ते हुए जो है मुसलमान उसमें दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह मेरे दोस्तों दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान 4 दिन तक जो है बड़ी सख्त जो है जंग होगी। पहले 3 दिन मुसलमान मगलूब रहेंगे, है ना, और ईसाई गालिब रहेंगे। चौथे दिन अल्लाह ताला मुसलमानों को गलबा अता फरमाएंगे और ईसाइयों को शिकस्त होगी, वो हार जाएंगे जो है। इसी तरह मेरे दोस्तों ये जंग इस कदर खूरेज होगी कि उससे पहले ऐसी खूरेज जंग किसी ने नहीं देखी होगी। 99% लोग इसमें मारे जाएंगे और इस जंग के फ़ौरन बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा, जिसके खबर लाने के लिए मुसलमान 10 आदमियों को घोड़ा पर रवाना करेंगे जो है। ठीक है, तो ये लंबी हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और जिसका एक मैंने ख़ुलासा आपको बताया जो है कि बड़ी लंबी रिवायत है, वो मैं उसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता। तो उसी रिवायत का एक ख़ुलासा मैंने आपको ये बता दिया जो है कि इस तरह से जो है बड़ी सख्त जंग होगी और बाद में जो है मुसलमान, यानी 4 दिन तक लड़ाई होगी और मुसलमानों को जो है चौथे दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन गलबा अता फरमाएंगे। 3 दिन तक तो समझिए कि वो मगलूब रहेंगे, लेकिन चौथे दिन जो है अल्लाह ताला उन्हें गलबा देगा और मुसलमानों की फतह होगी और ईसाइयों की शिकस्त होगी जो है। इसी तरह मेरे दोस्तों आखिरी बातें कुछ हैं, थोड़ी 2-3 मिनट में इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा कि छोटी आँखों और सुर्ख चेहरों, मोटी और चिपटी नाक वाले तुर्कों से मुसलमान जंग करेंगे। इसी तरह बालों के जूते और बालों के लिबास पहनने वाली कौम के साथ भी मुसलमानों की जंग होगी। समझ रहे हैं ना। एक रिवायत में बुखारी की सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम तुर्कों से जंग ना कर लो, है ना, जिनकी आँखें छोटी, मुँह सुर्ख, नाक मोटी और फैली हुई और चेहरे
क्या है, चमड़ा दार ढाल की तरह चौड़े चौड़े होंगे, और क़यामत उस वक्त तक भी कायम नहीं होगी जब तक तुम उन लोगों से जंग ना कर लो जो बालों के जूते पहनते हैं। जो बालों के जूते, यानी बालों के जूते पहनेंगे वो लोग जो है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है यलबसून अश्शार, यानी बाल के लिबास पहनने वालों से तुम जंग करोगे। तो उसमें इजाफा मुस्लिम शरीफ के अल्फाज में कि वो बाल के लिबास, यानी गोया कि उनके लिबास बाल के जूते भी पहनेंगे और बाल के लिबास भी ऐसे लोग पहनेंगे। ठीक है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, तुर्कियों और तुर्कों और हबशियों से जंग में पहल न करने का भी हुक्म दिया गया है। एक रिवायत है जो अबू दाऊद की, साहबे कराम में से एक सहाबी ने से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हबशियों को छोड़ दो। हबशा जो एथोपिया जिसको हम आजकल कहते हैं, मशहूर मुल्क है, हबशियों को छोड़ दो जब तक वो तुम्हें छोड़ दें, यानी उनसे जंग ना करो, और तुर्कों को छोड़ दो जब तक वो तुम्हें छोड़ दें। आखिरी बात मेरे दोस्तों, क़यामत से पहले शुरू होने वाली बड़ी जंगों में दमिश्क का एक आदमी बड़े कारनामे सर अंजाम देगा। दमिश्क जो राजधानी है अभी सीरिया की, मशहूर शहर है ना। इस रिवायत को एक हदीस में सुनाना चाहता हूँ जो इब्न माजा और हाकिम की रिवायत है, हसन हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जंगें शुरू होंगी तो दमिश्क से एक अजमी शख्स उठेगा जो सबसे बढ़कर शहसवार होगा और उसके पास बेहतरीन हथियार होंगे। अल्लाह ताला उसके ज़रिए अपने दीन की मदद फरमाएगा। समझ रहे हैं ना। तो एक आदमी दमिश्क से बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देगा और अल्लाह ताला जो है बहुत बड़ा यानी शहसवार होगा वो, और उसके पास अच्छे हथियार होंगे। अल्लाह ताला उसके ज़रिए से अपने दीन की मदद फरमाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल जो बयान होगा वो इमाम महदी का ज़ुहूर और उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को क़यामत के से पहले जो होने वाले हर फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला जो है हम सब को जो हर किस्म की बीमारी और हर किस्म की वबा से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।